Hello friends, today we will start chapter 2 of class 11th, relations and functions. First of all, we take an example of a Cartesian product. What is the definition of Cartesian product? Before, we will take an example. Let A is a set of two colors, red and blue, and B is a set of three objects, B, C, S. Now, if we put element of A and B in order pair such a way that first element from first set and second element from second set, then we get red comma B, red comma C, red comma S, blue B, blue का pair C के साथ, blue का pair S के साथ. तो we get element of A cross B. This is the Cartesian product of sets. तो अगर अपने पास दो empty set हैं P and Q, तो उनका Cartesian product कैसे define होगा? Set of all order pair P comma Q such that P belongs to first set capital P and Q belongs to second set capital Q, and it is denoted by P cross Q. Clear? Now if P and Q, P और Q is the null set, इन दोनों में से या दोनों अगर null set है तो उनका Cartesian product भी क्या होगा? Empty set होगा. That means P cross Q is equal to 5. Now some important points you have to remember. If two order pairs are equal, कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं पता है आप लोगों को? इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल. क्लियर? सपोज if first two elements a comma b is equal to c comma d, then first element a, here first element c, then a equal to c and b equal to d. If there are p elements in a and q elements in b, then there will be p into q elements, in a cross b, and that means if n of a number of element a equal to p, n of b equal to q, then n of a cross b is equal to pq. Third, if p, a and b are non-empty sets and either a or b is an infinite set, अगर दोनों में से कोई भी एक infinite set है और दोनों non-empty है तो उनका Cartesian product भी क्या होगा? Infinite set होगा. Now what happens if we take three sets, then a cross a, we get a triplet, ordered triplet A B C, says that A B C belongs to A. Here A B C is called an order triplet, sorry. Now example, first, if x plus y and y minus 2 order pair is equal to 3 comma 1, then find the value of x and y. We know that if two order pairs are equal, then first element equal to first element and second element to second. तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है? x प्लस वन. सेकेंड इस राइट साइड में जो ऑर्डर पेयर उसका फर्स्ट एलिमेंट 3, वी कंपेयर दीज, वी गेट x इक्वल टू 2 एंड सेकेंड एलिमेंट के कंपेरिजन में y इक्वल टू 3. नाउ एग्जांपल 3 of your book, let A has element 1 2 3, B 3 4 and C 4 5 6. Then we have to find A cross B intersection C. Now for first A cross B intersection C, okay, so first we have to find B intersection C. Now what is common in B and C? Only 4. तो B intersection C क्या होगा? 4. अब A के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो A के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट A का 1, then element of B intersection C 4 2 4 3 4, we get A cross B intersection C. Second, A cross B intersection A cross C. This time we have to first find Cartesian product of A and B and Cartesian product of A and C, then we have to take intersection. Now A cross B 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 and 3 4. A cross C 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. Simply first element of set first and second element of set. इस तरह से सभी ऑर्डर पेयर को लिख देना है. अब इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? जैसे आप देख सकते हैं कॉमन एलिमेंट 1,4 कॉमन है, फिर 2,4 this is also common, 3,4 this is also common. Therefore here are three elements
are common. Therefore, elements of A cross B intersection A cross C is 1, 4, 2, 4, 3, 4. Similarly, third and fourth questions you can also easily do. In this, what we have? B union C. Union, you already studied in chapter first. Union of two sets is the set of all elements which either belongs to B or C or both. तो B और C के दोनों के एलिमेंट इसमें लिखने हैं जो कॉमन है, चाहे B में है चाहे C में, और फिर उसका A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है. Now come to our definition. Relation. What do you mean relation? A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. अभी हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट जो होगा वो क्या होगा? रिलेशन. लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर? सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी. दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का, उसी में से जो सेट उसके सबसेट होगी वो क्या होगा? रिलेशन. द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइब. अब सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? हम एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी. The second element is called the image of the first element. Second element is called the image of first element. Domain, the set of all first element of the order pairs in a relation R from a set to a set B, set A to a set B is called domain. First element के जो भी element set होगा वो क्या होगा? Domain कहलाएगा. Range, the set of all second element. हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? A cross B का सबसेट. तो इसका वाला जो रेंज होगा वो एलिमेंट किसके आएंगे? बी के. तो बी क्या हो गया? कोडोमेन. नाउ एग्जांपल 7. लेट A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Define a relation R from A to A by R. जनरली R से डिनोट करते हैं रिलेशन को. R is a set of all order pair x, y such that y is equal to x plus 1. अब यहाँ पर x और y में एक रिलेशन दे दिया, y x से 1 मोर है. ठीक है. अब इस रिलेशन को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे. वही हमारा क्या होगा? रिलेशन होगा. सेट A का A में ही है यहाँ पर, और इसको हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं और उसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करेंगे. फर्स्ट बाय द डेफिनेशन. नाउ y is 1 more from. So if we take x1 then y will be 2. If we take x equal to 2, y will be 3. For 3 y will be 4. For 4 5, 5, 6. We get all. Why? The xy belongs to set A. So we take up to 5 only. Okay. Domain, set of all first element 1, 2, 3, 4, 5. Range, set of all second element 2, 3, 4, 5, 6. Codomain, set of B 1, 2, 3. जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट यहाँ पर यही है क्योंकि ए से ए में रिलेशन डिफाइन है. अब हम इसको डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं? एक हमने सेट ए ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दूसरा सेट भी ए है, उसको एक क्लोज करूं मैं, एलिमेंट्स को लिख दिया. अब 1 का इमेज क्या है? 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6. इस तरह से हम एरो से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ तो इस तरह से किन्हीं भी दो सेट्स में कितने एलिमेंट बन सकते हैं, कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं? जैसा कि हमें पता है कि रिलेशन है क्या? ए क्रॉस बी का सबसेट है, और हम जानते हैं किसी भी सेट के सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं. अगर सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने पॉसिबल हैं? 2 to the power n. तो यहाँ पर अगर अपने पास दो सेट है, एक में p एलिमेंट है, एक में q है, तो हम जानते हैं, अभी पढ़ा था, A cross B में कितने एलिमेंट होंगे? P into Q. Then the total number of relations will be 2 to the power P into Q. Clear? हम इस एग्जांपल से और क्लियर कर सकते हैं. एग्जांपल 9 आपकी बुक का है. Let A equal to 1, 2, B equal to 3, 4. Find the number of relations. So first of all, A cross B 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. दिख रहा है आपको कितने रिलेशन पॉसिबल है? 4. A cross B में सॉरी एलिमेंट कितने हैं? 4. The number of subsets 2 to the power 4. ये 2 to the power है ये, ठीक है, 2 to the power 4. Therefore the number of relations from A into B will be 2 to the power 4. Clear? Now next functions. Functions क्या है? रिलेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म है. A relation from
a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of a set A has one and only one image in set B. Every element यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है? Every element set A का सभी एलिमेंट आने चाहिए. यहाँ पे देखिए every element. और सेकंड केस क्या है? वन एंड ओनली वन इमेज. ऐसा नहीं होगा एक के दो, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा था. जैसे यहाँ पे वन की इमेज 4 भी है, वन की 5 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा. क्लियर? जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, हाँ, रेड ब्लू, रेड बी से भी है और रेड सी से भी है, तो दीज आर नॉट फंक्शन. तो नाउ क्लियर व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू अ सेट बी. कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट छूट गया है. एवरी एलिमेंट, यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है? यूनिक होना चाहिए, इमेज यूनिक होनी चाहिए. क्लियर? तो इसकी एक और डेफिनेशन बता सकते हैं. फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी such that the domain of f is A. एवरी बात हो रही ना, ऑल एलिमेंट. इससे पहले जो रिलेशन में डोमेन क्या ले रहे थे? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन. ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका, रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर था. लेकिन यहाँ पर डोमेन क्या हो गया? पूरा सेट ए. क्यों? क्योंकि फंक्शन है तो उसमें सभी एलिमेंट किसी न किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़े होंगे सेट बी के. एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट. जैसे 1 4 1 5, किसी भी ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए. नाउ इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड a, b is belongs to f, जो ऑर्डर पेयर है, देन ये सिंबल बिलोंग्स का है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया. f of a equal to b where b is called image of a under f. तो उस केस में f of a, that means the function जो रिलेशन ऑपरेट होगा a पे, वो क्या इमेज देगा? b. इसको क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ a अंडर f. एंड a इज कॉल्ड प्री इमेज. a प्री इमेज किसकी होगी? b की. क्लियर? b क्या होगा? इमेज ऑफ a अंडर f एंड a इज द कॉल्ड प्री इमेज ऑफ b अंडर f. एंड द फंक्शन f from a to b is denoted by f semicolon a to b. colon, sorry, f colon a to b. Now, real valued function, a function which has either R or, that means R set of real numbers, or one of its subset as its range is called a real valued function. कोई भी function का range set of images क्या हो? या तो real number हो या उसका कोई subset हो, तो वो क्या कहलाएगा? real valued function. और अगर डोमेन भी R है, that means set of real numbers है, या सबसेट है रियल नंबर का, तो उसको क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन. क्लियर? रियल फंक्शन में डोमेन रियल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा, और रियल वैल्यूड यानी फंक्शन ऑपरेट करने पे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या होगी? रियल नंबर या उसका सबसेट. नाउ सम टाइप्स ऑफ फंक्शन. फर्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन. Let R be the set of real numbers. Define the real valued function f from R to R by y is equal to fx equal to x for each x belongs to R. यहाँ पर R से R है, एक ही सेट पे फंक्शन डिफाइन है, और किस तरह से डिफाइन है? जो इमेज है वो x की x पे ही जा रही है. मतलब अगर R में 1 2 3 है तो 1 की इमेज क्या होगी? 1, 2 की 2, 3 की 3. क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. यहाँ पे डोमेन और रेंज, डोमेन क्या है? R, और रेंज, क्योंकि जो जो हम वैल्यू पुट करेंगे सारे रियल नंबर्स की इमेज रियल नंबर ही मिलेगी वही, तो रेंज भी क्या हो गई? R. तो ग्राफ इसका हम देखें तो क्या मिल रहा है अपने को? y इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये किससे पास होगी? ओरिजिन से. क्लियर? दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन. नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट, यानी कि इस केस में इमेज क्या होगी? कांस्टेंट. कोई भी फंक्शन R से R में अगर इस तरह से डिफाइंड हो कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, दैट्स मीन f ऑफ x इक्वल टू सी, यहाँ पर x कोई रियल नंबर है और c कोई कांस्टेंट है, देन फॉर ईच x बिलोंग्स टू, x की सभी इमेज कहाँ जा रही है? कांस्टेंट पे, देन दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. और इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर इनपुट कर रहे हैं अपन. रेंज ओनली एक ही मिलेगी अपने को,
कांस्टेंट नंबर जो है, जैसे यहाँ पर ये एफ एक्स इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ गिवन है एफ एक्स, दैट मीन्स वाई इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू 3 के लिए ये क्लियर, ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन। A function f from R to R, this will be arrow, a function from R to R is said to be polynomial function if for each x belongs to R, रियल नंबर के x के लिए हमें क्या मिले उसकी इमेज, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो रिजल्ट क्या आएगा, इमेज पॉलिनोमियल a0 plus a1x plus a2x square plus up to an x to the power n, where n is a non-negative integer and a0 a1 a2 an all are real numbers. Clear? For example, fx equal to x cube minus x square plus 2 and x to the power 4 plus under root 2 x. These are some example polynomial. यहाँ पर कंडीशन देखो क्या लिखा, n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे अगर एच एक्स इस तरह से हो x टू द पावर 3/2 प्लस 2x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर नहीं है, पावर क्या आ गई, रेशनल। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का, एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स क्यूब फंक्शन है, रियल नंबर है आर से आर, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपन वैल्यू पुट करेंगे, रियल नंबर्स, 0 की इमेज 0, 1 की 1, 1 की पावर 3, -1 की पावर -1, 2 टू द पावर 2 टू पावर 3, 8, -2, -8, 3, 27, -3, -27. Therefore, f is the set of all order pair x, x cube where x belongs to R. ग्राफ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। क्लियर? रेशनल फंक्शन। Rational functions are functions of the type fx upon gx, fx upon gx, मतलब दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, उनका रेशनल फंक्शन कैसे होगा, कोसेंट की फॉर्म में fx upon gx, where fx and gx are polynomial functions of x defined in a domain where gx is not equal to 0. Clear? Next, modulus function. Modulus of a number आपने पढ़ा ही होगा, तो वैसे ही है, इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, मॉडुलस, जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे उसका मॉडुलस। तो फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod of x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, रियल से रियल में, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, fx इज इक्वल टू x, बट फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। ये तो डेफिनेशन आपको पता ही है, अगर x पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू x, और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू का नेगेटिव माइनस ऑफ x। क्लियर? इस केस में हमें सभी x के लिए, चाहे हम राइट में देखें या नेगेटिव x में, सभी में क्या मिलेगा, पॉजिटिव, y इक्वल टू x, और ये 1 की वैल्यू 1, -1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, -2 की भी 2, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। क्लियर? सिग्नम फंक्शन, this is also a particular type of function. In this domain is R, R में फंक्शन डिफाइंड है, रेंज अभी बताएंगे, अपन फाइंड करेंगे किस तरह से डिफाइन है। x अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 है, इमेज कहाँ जाएगी, पॉजिटिव x के लिए 1, 0 की वैल्यू 0, और नेगेटिव x के लिए -1, मतलब जितने भी पॉजिटिव x यानी राइट साइड में जो है अपना राइट हाफ प्लेन, उसकी इमेज क्या आएगी, 1 1 1 1, 0 पे 0, और नेगेटिव के लिए ये -1। Clear? This type of function is called signum function. The domain of the signum function is R and the range is the set -1, 0 and 1, because we get only 3 result. Greatest integer function. The function f from R to R defined by fx is, ये बड़े ब्रैकेट जो है, बिग ब्रैकेट में x को रिप्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, वेयर x बिलोंग्स टू r assumes the value of the greatest integer less than or equal to x, मतलब जो भी x है उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे, आइदर वो लेस देन है और उससे इक्वल है, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे, देखो
अगर हम -1 से 0 के बीच में वैल्यू देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। 0 से 1 के बीच में जा रहे हैं अपन, वैल्यू क्या होगी, 0। इंटीजर देखना है जो लेस देन x है, तो यहाँ पर -1 से बड़ी वैल्यू -1.5, -1.999, लेकिन सब जो ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, -1। क्लियर। से वैसे 0 से लेके 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू है 0.5, 0.555, 0.6, उन सब में जो इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, लेस देन, ये होगा 0। सेम ऐसे 1 और 2 के लिए, 1, 2 और 3 के लिए 2। तो इसका हम अगर ग्राफ देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, इंटरवल दिख रहा है, ओपन इंटरवल, -1 है लेकिन 0 नहीं है, 0 है लेकिन 1 नहीं है, 1 है 2 नहीं है ना। तो इसका जो इमेजेस का सेट बनेगा, -1 से 0 के लिए -1, ठीक है, -1 से -2 के लिए -2, -2 से -3 के लिए -3, इस तरह से। सेम यहाँ पर 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 2, 3 से 4 के बीच में 4, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। क्लियर। नाउ एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, जैसे नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे फंक्शंस के लिए भी डिफाइन है। एडिशन अगर हम दो रियल फंक्शन को कैसे, रियल फंक्शन अभी बताया आपको क्या था, यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन को रियल फंक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। f is a function from x to r and g is another function from x to r, then both are real functions where small x belongs to r, मतलब जो डोमेन है वो भी क्या है, r का सबसेट है। तो f प्लस जी भी हम उसी x से r में डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन होगा, f प्लस जी ओवर x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। क्लियर। दोनों का ऐड करके जो फंक्शन डिफाइन होगा वो दोनों की x की वैल्यू जो है उस फंक्शन पे उनका एडिशन होगा। इसी तरह सेम सबसेक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वही फंक्शन f और g, एक ही सेम डोमेन है, स्वयं को डोमेन है, बस चेंज क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन है तो साइन माइनस का आ गया। f माइनस जी डिफाइन कैसे होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अब मल्टीप्लिकेशन में रियल फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कोई स्केलर भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय a स्केलर। Let f is a function from x to r be a real valued function and alpha be a scalar, a real number, then the product alpha f is a function from x to r defined by alpha f x is equal to alpha into x where x belongs to x। क्लियर। अगर स्केलर है अपने पास, स्केलर मतलब रियल नंबर है, तो उसको फंक्शन से मल्टीप्लाई करके अगर ऑपरेट करेंगे तो वो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसके साथ अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Multiplication of two real numbers. Yes, now multiplication of two real functions. The product or multiplication of two real function f and z is a function f into z defined as fg over x is equal to fx into gx। मतलब x पे उनके प्रोडक्ट का फंक्शन कैसे ऑपरेट होगा, उन दोनों की जो फंक्शन की वैल्यू x पे है उन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर। इसको हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट कोसेंट, जैसे डिवाइड करते हैं हम, कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। Let f and g be two real functions defined from x to r where x is a subset of r. The quotient of f by g denoted by f upon g is a function defined by f over g, f upon g over x is equal to fx upon gx। उन दोनों फंक्शन की जो x पे वैल्यू है उनका कोसेंट। कंडीशन क्या है, provided that gx is not equal to 0 where x belongs to x। Clear? Now some example of algebra of functions. Suppose let fx equal to x square and gx equal to 2x plus 1 be two real functions. We have to find addition, subtraction, multiplication and quotient of these fg into f upon g. Now solution, we have f plus g, x square plus gx which is 2x plus 1. Subtraction f
x minus gx. Multiplication x square into 2x plus 1, simply multiply 2x cube plus x square, and division fx upon gx. For gx is not equal to 0, 2x plus 1 is not equal to, that means x is not equal to minus 1 upon 2. Clear? Thank you. Have a nice day.